अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज़ हम करेंगे ओवल ऑफिस से, लेकिन आज का सेगमेंट हमने कुछ इस तरह से वज़ा किया है जैसे हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन है कि आज से 6 माह बाद ओवल ऑफिस में कौन होगा। तो एक ऐसे मफरूज़े और गुमान के तहत कि कमाला हारिस इलेक्शन जीत जाएंगी और वो इस चेयर पे बैठी यानी कुर्सी सदारत पे कैसी लगेंगी और क्या क्या गुल खिलाएंगी, आज हम एक फ्यूचरिस्टिक शो देखते हैं, ओवल ऑफिस। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੇਂਜਿੰਗਾਂ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਦੌਰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। यार आप वहीं पे हैं? ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਡਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। तो वो चले गए हैं अब यहाँ से परमानेंटली? सुना है कभी कभार आ जाते हैं। हाँ जी, कदी कदी आ जाते हैं। भावें ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੇਵਰਟ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। अच्छा, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਸਦਰ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। वाह 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 वाह। अच्छा यार, प्रेसिडेंट साहबा से तो बात करें। ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਦਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸੈਨ ਤੇ ਸੈਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਈਨੋ ਸਾਈਨ ਲੱਗੇ ਜੇ? बाजी ਵੇ ਤੂੰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਚਮੜਿਆ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਫੀ मैं तो बस देख देख के हैरान हो रहा हूँ अल्लाह की कुदरतें कि आप कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕੋਟ ਦਾ ਕਲਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं वो तो बड़ा प्यारा है। ਮੈਂ ਕੈਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ? बहुत अच्छी लग रही है। ਧਿਆਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਮੈਂ? ऐसे ही ज़रा। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਦਾ ਚੂਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा ये बताएं कि आप इलेक्शन जीती कैसे हैं? ਉਤਰੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਤੀਦਾ ਹੈ। मैं यही पूछ रहा हूँ, किसने जिताया? ਉਤਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਗੰਜੀ ਬਤਾ ਕਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਹ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਕਾਹ ਹਾਰਨਾ ਹੈ। अच्छा आज स्टाफ नजर नहीं आ रहा, वो किधर है जो यहाँ पे मुल्तानन होती थी? ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ। और उसका गार्ड बाहर से ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੱਚ ਦੀ ਖੱਚ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਅਜੇ। वो कैसे? ਓਏ ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਉਹਨੇ ਹਲੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਮਰੀਖ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣਾ। ਤੇ ਆਫੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ, ਵੇ हाँ जी। ਅਮਰੀਕਾ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਹੀ ਹੋ? अमेरिका को इतनी जल्दी नहीं आ रहा मैं, लेकिन आऊँगा। ਵੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਆ? ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਵੀ ਭੰਨਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਦਰ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਜੀ, ਜ਼ਰਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ, ਆ ਜਾ। ये कौन है? ओए होए 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 होए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੌਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਫਲੈਸ਼ ਹੀ ਭਾਜੀ ਆਟੋ ਤੇ ਲਵਾਇਆ, ਫਲੈਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਅਫਤਾਬ? ਹਾਏ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹਾਸੇ, ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕਿਦਾਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਉਹੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ, ਯਾਦ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ? बहुत सारे। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਸੀ? 3। ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ 10,000 ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन DC से अंकल जी, जो अब इस शो का एक मुस्तकिल कैरेक्टर बनते जा रहे हैं। हमने सोचा है कि जब तक लूज कैनन प्रॉपरली हम शुरू नहीं करते तब तक अंकल जी वक्तन फ़वक्तन हमारे शो में आया करेंगे। मैं आज खुसूसी रिक्वेस्ट करूंगा अंकल जी से। अंकल जी, कैन यू हेयर मी? Yeah, I'm good. Thank you very much. Thanks for joining us. My request is that please confine yourself to Urdu. My listeners do not understand, most of my listeners do not understand English. So please speak Urdu as much as you can. चलो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उर्दू में गुफ्तगू करेंगे। जी अंकल जी, उर्दू में पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं। बहुत शुक्रिया, आप उर्दू बोल रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे व्यूअर्स को बहुत अच्छा लग रहा है। अंकल जी, इससे पहले कि मैं सवाल करूं आपसे, मुझे ये बताइए कि आपने ये कान के ऊपर गाज क्यों लगा रखा है? और ये तो मैंने गॉज लगाया हुआ है कि मैंने अपना डोनाल्ड ट्रंप के साथ सारे पेट्रियट्स जो हैं, ये फैशन बन गया है। अब हमने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने के लिए हमने ये गॉज लगाया हुआ, बैंडेज लगाया है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बैंडेज। लेकिन आपने उल्टी साइड पे लगाया हुआ है, इंस्टेड ऑफ राइट आपने लेफ्ट ईयर पे लगाया हुआ है। ਇਹਨੂੰ ਖੱਬੂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ।
आफ्ताब साहब आपको पता है कि बेसिकली मैं लेफ्टिस्ट हूँ इवन दो मैं डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहा हूँ। यार मैं जानना चाहता हूं आपसे कि क्या हुआ है, ये जो मेल वोट्स थे इनमें को मामलात किए गए हैं? आपको पता है काफी रिगिंग हुई है इस इलेक्शन में, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीता है। डोनाल्ड ट्रंप का इतना ज्यादा सपोर्ट थी, अगर आप देखो जब कमला हैरिस ने इलेक्शन में ज्वाइन किया था 2-3 दिन लगे थे वो बाइडेन से स्टेप डाउन करने के लिए कि वो ऊपर चलेगी। उससे पहले उसकी जो डिसफेवरेबल रेटिंग्स थी वो सबसे ज्यादा थी, उसके बाइडेन से भी और डिसफेवरेबल थी। उसके पोलिंग नंबर्स भी काफी ट्रंप से नीचे थे, तो इलेक्शन से और 2 महीने जो पहले जस्ट वो बन गई थी डेमोक्रेटिक नॉमिनी, क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता था। उनने पैसे भी इस्तेमाल किए, सब कुछ इस्तेमाल किया, ट्रंप का इतना सपोर्ट था। इसके पीछे कौन है, किसने इसको जिताया? मैं बताता हूं, जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो एक्चुअल लोग हैं जो बेसिकली गवर्नमेंट को रन करते हैं, उन्होंने कहना था कि ट्रंप फिर से नहीं आ सकता। तो उन्होंने क्या था, चलो हम मेल एंड बैलेट्स, वो तो बड़ा इजी है कि हम वो डिले कर सकते हैं, हम मेल में लॉस कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं, हम किसी को बेच नहीं सकते हैं। मेल एंड बैलेट्स में काफी फ्रॉड हो सकता है। और जब इलेक्शन इतना क्लोज है कि इधर उधर से वोट्स इधर उधर चले जा सकते हैं, कोई भी जीत सकता है। ये मेल एंड बैलेट से काफी रिगिंग हुई थी और काफी इलेक्शन फ्रॉड अमेरिका में हुआ था। इसलिए अभी आपका जो कमाला है वो इधर बैठा, कमाला 2 नंबर इधर बैठी हुई है व्हाइट हाउस में, देख लो। अंकल जी ये बताएं कि कितने % वोट हैं जो डाक के जरिए आते हैं? जस्ट अ फ्यू परसेंटेज पॉइंट्स, इतने परसेंटेज पॉइंट्स का नहीं है, 1 और 2 में भी बेसिकली। लेकिन एक चीज है अंकल जी कि ट्रंप को हमेशा कमला हैरिस का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि ही ओज हिज लाइफ टू हर, उसकी जान बचाई थी कमला हैरिस ने। जी ये बिल्कुल सही आपने बोला है आफ्ताब साहब। अगर आप देखो रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन, वो उन्होंने फिर से दिखाया था ये जो डायग्राम था, बेसिकली उस दिन पे जब उसने स्पीच दी थी जिस पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई थी, वो कमला हैरिस पे तनकीद कर रहा था कि देखें इसने क्या कर दिया हमारे मुल्क के साथ। जब इधर देखा तो वो गोली जो सीधी सर पे आ रही थी वो इधर आ गई। इसलिए तो मैं कहनी हां मेरी वजह नाल बचा गहने दा बचा। अंकल जी ये बताएं कि जो एनालिस्ट्स हैं वो कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि धीरे धीरे अमेरिका सिविल वॉर की तरफ रेंगता हुआ जा रहा है, डेमोक्रेसी को खतरा है और सिविल वॉर का खतरा है। If you look at what happened, the reason why this has caused a civil war in the United States, the Republicans cannot believe that a woman, African American woman, Indian woman, a minority woman, who was so disliked by the general populace, somehow was able to win the election. It's unheard of. तो बेसिकली अगर आप देखो कि क्या हुआ इलेक्शन में, इलेक्शन से पहले सारे पोल्स डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप के पास इतने पैसे थे, उसने बेसिकली मिथिकल फिगर बन गया था जब उसने असैसिनेशन अटेम्प्ट को सर्वाइव किया। तो अगर आप सब कुछ देखो, हो नहीं सकता इन रिपब्लिकन्स को देख के कि डोनाल्ड ट्रंप हार सकता है। किसी तरह से वो हार गया। कमला हैरिस अब देख लो, वो बैठी हुई है ओवल ऑफिस में। तो रिपब्लिकन्स जो हैं वो सारे नेशनल राइफलमैन एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, और देख लो कि डोनाल्ड ट्रंप भी उसके असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद वो भी प्रोबेबली हीट कैरी कर रहा था, उसके पास भी गन थी। तो ये सब लोग बंदूकों के साथ हैं, ये जो रिपब्लिकन्स हैं इधर उधर जा रहे हैं। तो जनवरी 6 2025 जो है वो जनवरी 6 2021 से 10 टाइम्स वर्स है, और इसी तरह से सिविल वॉर हो गया कि सारे जो रिपब्लिकन्स हैं उनके पास गन्स हैं और बंदूकें हैं, और उन्हें कुछ करना है इनके साथ। एक बड़ी फनी बात मैं करने लगा हूं अंकल जी कि एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं, और ये वो एनालिस्ट हैं जो बहुत सीरियस लोग हैं, वो कहते हैं कि आने वाले दिनों में शायद अमेरिका जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा है और करने जा रहा है, उनमें से एक तो डिबैकल ऑफ डेमोक्रेसी होगा, और बराक ओबामा इज गोइंग टू बी इन द सीट अगेन। हाउ इज इट पॉसिबल? कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपना जो स्लीपी जो का भी उसने एड्रेस दिया है,
उसने कितनी दफा डेमोक्रेसी को सेव करना है, डेमोक्रेसी डेंजर में है, डेमोक्रेसी खत्म होने लगी है, इसलिए मैं नहीं रन कर रहा हूं। देख लो उसने सब कुछ प्रीव्यू कर दिया था कि कुछ होने लगा है, वो सब कुछ प्रीव्यू हो गया था उस स्पीच में। तो फिर क्या हो सकता है? कमाला हैरिस आ गई है, वो रिपब्लिकन्स ने सपोर्ट नहीं करना है। हम सबको पता है कि कौन शो को रन कर रहा है। स्लीपी जोधा था, वो बेसिकली कॉर्प्स था। कौन रन कर रहा है सब कुछ? और कोई नहीं है, वो बराक ओबामा है। हमने प्रियम्प्ट किया, देख लो कैसे प्रियम्प्ट किया। आपको एनालॉजी नहीं देख रही कि क्या आपके अपने मुल्क में क्या हुआ है? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। वहां तो खैर फिर गंगा ही उल्टी बहती है ना, यहाँ पर तो छोड़ें। मैं तो अमेरिका की बात कर रहा हूँ जो रोल मॉडल है सबके लिए, डेमोक्रेसी है। नहीं सर, आप देखो कि अगर जो अमेरिका एस्टैब्लिशमेंट डेमोक्रेसी है, एस्टैब्लिशमेंट जो है सारी जगह में एक ही रोल प्ले कर सकती है और एक ही चीज करती है। रोमन एम्पायर टू अमेरिका टुडे एक ही चीज होती है। और डेमोक्रेसी का जो पता है, डेमोक्रेसी बेस्ट गवर्नमेंट है और वर्स्ट गवर्नमेंट भी होती है। तो एस्टैब्लिशमेंट में कुछ भी कर सकता है। एस्टैब्लिशमेंट बराक ओबामा को लेके और अपने जो अपोनेंट्स हैं वो सबको जेल में जा सकते। ट्रंप को देख लो, वो कन्विक्ट हो गया, देख लो वो उनको जेल में डालेंगे। वो नेक्स्ट उसके बाद फॉक्स न्यूज के जो एंकर्स जो सपोर्ट कर रहे हैं इस इंसरेक्शन को, वो भी जेल में जाएंगे। वो मीडिया फेयर एंड फ्री फिर से नहीं होगी। जो सपोर्ट करेंगे बराक ओबामा इस स्टेज के लिए वो आएंगे, और सब जो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं वो जेल में जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट करेगी जो एस्टैब्लिशमेंट करनी है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, लोगों को पता नहीं है कि मिलिट्री और पेंटागन का कितना पावर है जब तक इंसरेक्शन होएगा। आप बस ये देख लो आफ्ताब साहब कि पिछले 2 सालों में जो पाकिस्तान में होया है, आप देखना वो कोई 10x या 100x अमेरिका में होएगा। तो फिर आप ये बताएं कि फेडरेशन कंटिन्यू कर सकेगी, सरवाइव करेगी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो सब तरह सरवाइव करेगी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खराब नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती है। आप देखना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल सर्वाइव। ये आइडिया है, ये डेमोक्रेसी है। हम कोई एक्सट्रीम मेजर्स इस्तेमाल कर लेंगे, बस डेमोक्रेसी और अमेरिका कभी भी नहीं डाई कर सकती है, मर नहीं सकती। आई अप्रिशिएट योर पेट्रियाटिज्म, आपकी हुब्बुल वतनी की मैं तारीफ करता हूं अंकल जी, लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं वो कुछ और बता रहे हैं। इंडिकेटर्स कुछ भी बताना है। अमेरिका will rise up like a phoenix from the ashes। आप देखना जब ये टर्मोइल, सिविल वॉर, ये सब जो ये होना है, हमको पता है ये हो रहा है, ये हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, अमेरिका फिर भी होएगा। आप देखना अमेरिका कहीं नहीं जा रहा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। अंकल जी जान तो पहले थोड़ा जादू करके वो हाजी तेरी मेहरबानी। अच्छा चलो, मैं खरगोश करूंगा अगर आप फिर से हमारे लिए एक गाना गाओ और कमाला को फिर से नचाओ। आए ले सोना फिर जी पोते चिट्टा चोला सीवे दर्जी ओ नहीं बुलेंदा ओए डोले दी मर्जी यो चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला आया बारो डोंदे आया ढोले ते शारो है। चिट्टा चोला आया बारो रोंदे आए ढोले ते शारो। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। लवी चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला आया वाशरूम। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸਲ ਆਇਆ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੀ, ਗਾਣਾ ਇਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ। ਓਏ ਹੋਏ ਜੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਨਚਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਚਾਹ ਨਿਖੜੇਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ। उम्र का तकाजा है ना। ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਸਟਮ ਜਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ। ਮੈਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਆ 2 ਬਿਸਕੁਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਲੂਣੇ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਰੋਜ਼। ਤੂੰ ਕੀ ਖਾਦਾ ਅੱਜ? मैंने बड़ी मजे की चीज खाई है। ਕੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਦੀ?
मैंने मटन खाया 7 नलियां। ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਹਫਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਤੂੰ ਵਲੀਦ ਅਲ ਅਲੀ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਦੇਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਸਦਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣੀ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਐ ਵੀ ਬੁੱਢਿਆ? ਮੈਂ ਨਾ ਖੱਚਾ ਮਾਰਦਾ, ਨਾ ਵਕਤ ਬੇ ਵਕਤ ਸੌਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? वाकई बात दुरुस्त है। ਹਾਏ आपको तो वैसे अल्लाह ने जलील किया है। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। मैं पीटीआई का नहीं हूं वैसे, बाय द वे। ਪੀਟੀਆਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਊਟਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। मैं कभी नहीं था पीटीआई का, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? इसलिए कि वो एक बड़ा प्यारा आदमी है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। ਤੇ ਉਹ ਅਫਗਾनिस्तान ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ। नहीं नहीं, उसकी पार्टी के साथ मुझे को बहुत ज़्यादा रगबत नहीं है। उसकी पार्टी में माँ सिवाय चंद एक लोगों के, चंद लोग तो बहुत ही प्यारे हैं, और बाकी मैं नहीं पसंद करता, ना उस कल्चर को पसंद करता हूँ, और ना ये जो शुतर बेमहार यंगस्टर्स हैं इन्हें पसंद करता हूँ। और इसलिए कि इन्हें कभी किसी ने गाइड करने की जहमत ही गवारा नहीं की, इवन खान साहब ने जहमत नहीं गवारा की, और अब देखें बहुत सारा कुछ फेस किया उन्होंने। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये पीटीआई पार्टी नहीं है, एक फैन क्लब है, तो यू एग्री विद दैट? बड़ी हद तक ये जो कल्ट है ना, ये एक इशू ज़रूर है। आइडियोलॉजी एज सच इंकलकेट हो नहीं सकी लोगों के जहनों में, दिमागों में, यंगस्टर्स के। ये इसके ऊपर काम करना पड़ेगा इन्हें। अगर ये बहाव इन्हें कंटिन्यू करना है ना, तो फिर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। बहरहाल जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, परफेक्ट बेहतरीन आदमी है। पहले वो सोना था, सोना, अब कुंदन हो गया। ये कमाला हारिस को क्या हुआ है? ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਕ ਪਈ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਆਟਮਾ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜ ਲਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਨਿਓਲਾ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਫੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਆਫੀ तेरे से एडे माड़े दिन आ गए। आफी क्या फायदा तुम्हारे कीमे खाने का, जो अभी तुमने मटन खाया। इनू वेख के मटन डजन हो जाना ही। ਚੱਲ ਓਏ ਬਾਹਰ। की होया तेनू? प्लीज प्लीज तेरी मेहरबानी मैनू हाथ ना लाई ना, ਚੱਲ हाथ ना लाई। मैं आप ही, अल्लाह की कसम, मैं आप ही जावांगा। इनू रोक। ਉਹ ਬਾਜੀ ਦਫਾ ਕਰੋ ਪਰਾਂ ना ਬੈਠੋ। ना 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 ना, बाजी ਚੱਲ ਓਏ ਬਾਹਰ। हट हट हट, ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ना कर। और रोक। ओहो प्लीज देखो मेरी गल सुनो। ਓਏ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਖੋਤੇ ਆ ਜਾ। ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਟੱਚ ਮੀ। ना कर ना कर। ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਆਫੀ। वो तो सो गया। ਉਹਦੀ ਨੀਂਦਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬਵੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬੌਲ ਪਿਟਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ। एक मिनट है, जय ने की किया? हेलो ओए, हसीना जान ने की किया? यकीन कर, सिर्फ तेनू समझ आई है, पूरी दुनिया ते किसी नू समझ नहीं आ सकती। वो ठीक है, रहने दो। की क्या है? अभी आपको वॉशरूम की याद आएगी, खुद ही उठ जाएंगे। ओ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। लो जी, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਲ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਵੱਗ ਗਈ ਹੈ ਉਹ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਭਾਜੀ? वो कह रहा है कि चली गई है। ਹਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚਾਮਾ, ਹੋਰ ਕੌਣ? ਬਾਜੀ ਇਹਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਐਵੇਂ ਆਖੀ ਜਾਣਾ ਇੱਦੇ ਆ ਇੱਦੇ ਆ। ਬੜਾ ਸਾਲਾ ਕੋ ਹਾਜਤ ਮੰਨਦੇ ਯਾਰ, ਤੋਬਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਰਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੰਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟੀਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डमी म्यूजियम से साबिक सदर ओबामा और हमारे दोस्त साजिद तारड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, की हाल है जनाब? ठीक हो, खरीयत है? ठीक ठाक बिल्कुल, आप सुनाइए, सब अच्छा है? की अच्छा होना जी, बेड़ा गर्क कर दिता इन्हें फड़ के जमहूरीयत का। क्यों जी ओबामा साहब, क्या कर दिया आपने? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਸਾੜਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। क्यों जनाब, अचानक क्या हो गया? आपके तो नंबर्स बहुत अच्छे थे। ਉਹ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਜਨਾਬ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਜ਼ਲਾਲਤ ਉਹ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵੱਜੇ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਆ? ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਫਤਾਬ ਪੁੱਤ, जी प्रेसिडेंट साहब। ਇਹ ਦੋ ਮੌਜ਼ਜ਼ੀਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ। जी आप हुक्म करें, क्या कहना चाहते हैं? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਓਬਾਮਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਫਸਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਲਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਆ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਦੋਰ ਫਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੋਬਾ ਯਾਰ, ਓਬਾਮੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੈਟਅਪ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਪੈਪਸੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਪਰ ਪੈਪਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੈਪਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਪਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨੇ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਪੈਪਸੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਓਬਾਮਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਇਹਦੀ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਪਕੌੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋ ਲੈਂਦਾ, ਪਲੇਟ ਧਰਾ ਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ। ਸ਼ਾਹ ਸੈਨਮੇ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਆਫਤਾਬ ਪੁੱਤ, वाह 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 वाह, क्या पकौड़े हैं वो। ਮੰਗਵਾਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ, ਹਾਏ ਉਹ ਵਰਿਆਮ ਨਗਰ ਉਤਰਿਆ, ਉੱਥੇ 1.5 ਲੱਖ ਢਾੜੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਉਰੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। ਉਹ ਸਾਲੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ। ਲੈ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਸਟ ਪਕੌੜਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾਦਾ? हार्डीज का अनियन रिंग्स। ਲਓ ਹੈ ਪਕੌੜੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਟ ਤੇ ਰਿੰਗ। 70 का कौन देता है, पागल हो क्या। 70,000 ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਪਸੰਦਗੀ ਲੈ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। फतीनोज रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए सलमान खान, संजलीला बंसाली और एक पाकिस्तानी डायरेक्टर ने। आइए उनके साथ गपशप करते हैं। क्या हाल है जनाब खान साहब? क्या हाल चाल है भाई, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले पूछते हैं डायरेक्टर साहब से, क्या हाल है जनाब आपका? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਜਨ, ਮੈਂ यार मैं डायरेक्टर साहब से बात कर रहा हूँ। ਮੈਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਲੰਬਰ ਤਾਂ नहीं है। यार आप बतौर संजलीला बंसाली बैठे हैं एक साथ, ये जो भाईजान हैं हैंगर बन के बैठे हैं, ये खान साहब हैं हमारे, और एक जो डायरेक्टर है सबसे सीनियर जो आप में से है ना, ये एक पाकिस्तानी डायरेक्टर हैं। जरा तारुफ करवाइए अपना। ਪੀਕ ਡੋਗਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਚੰਗੇ ਗੱਲ ਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹੋ। सल्लू भाई एक बात बताइए। ਹਲੋ ਭਾਈ, जी जी, ये 2 डायरेक्टर्स में आपका क्या काम है? ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੰਜੇ ਲੀਲੇ ਨੂੰ। आपने कैसे बनाया भाई? ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। बेवकूफ़, ये विनोद चोपड़ा का असिस्टेंट हुआ करता था। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕटर। आपका इतना सा रोल था उसमें, मेन तो नाना पाटेकर थे। ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿੱਚ। चले हम दिल दे चुके सनम तो काउंट होती है ना, वो तो एक ब्रेक थ्रू था। हम दिल दे चुके सनम तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम नहीं आप गाया करें तड़प तड़प के। तड़प तड़प के इस दिल से। जो मेरे इस टाइम सिचुएशन है, मैं तड़पण नहीं दिया मौला दी सौ। ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਫਿਲਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ, ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਿਆਓ ਇਹਨੂੰ ਪਾਓ ਫਿਲਮ 'ਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਪ। अच्छा जी, डायरेक्टर साहब से पूछते हैं, पाकिस्तानी डायरेक्टर से, कि पाकिस्तानी फिल्म इस ज़बूं हाली का शिकार क्यों है? ਉਹ ਜੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਘੇਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਉਧਰ ਬਾਲ ਜਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਪਸ। ਓਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਬਾਲ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬੋਲੋ, ਹਸੀਨਾ ਜਾਓ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਾੜ ਚੜ ਗਈ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਬੋਲੋ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜੀ ਟੰਗੀ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਉਧਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣਾ, ਮੌਲਾ ਦੀ ਸੋ। ਭਾਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਸਲ ਕਿ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਦੱਬ ਉੱਡੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, 3 ਸ਼ਾਟ ਹੈਗਾ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕੈਮਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਬਹਿਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਦਮਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਐਸੇ ਆਪਣੀ ਪਈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕੀ ਡਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਰਾਓ ਮਸਤਾਨੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਏ, ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੁਹੱਲਾ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਾਤਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਲਾਇਕ ਨੇ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। इन्होंने समझाओ ना, एडी लंबी गल नहीं करनी। उस पे ये था कि आरएसएस को बड़ा एतराज था जी कि आपने इतने बड़े मरहट्टा लीडर को एक रक्कासा का आशिक बनाया हुआ है जिसके साथ वो नाचता फिरता है। तो ये उसके
ऑनर और डिग्निटी के खिलाफ थी, उनका ख्याल ये था। इंडिया में इस लफ्ज को मराठा बोलते हैं। ये इंडियंस मराठा कहते हैं, मराठी, तो हम मरहट्टे लिखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन मराठा, यू आर राइट, मराठा इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अच्छा भाई, उसी तरह हो जाओ ਯਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, अच्छा, बाजीगर की ऑफर पहले आपको हुई थी? ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਹਿੱਟ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, वो उससे पहले भी हिट था। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਚਾਰ ਫਿਕਰੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂ ਉਹ? अदाकारी उसकी बहुत सुपीरियर है आपसे, और लुक्स ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਨੇ। नहीं बहुत तो नहीं, बस 19-20 का फर्क है। अच्छा, आप अपने डांसिंग स्किल्स के बारे में क्या कहेंगे? ਡਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ओ जाने जाना हूँ मैं तेरा दीवाना, सपनों में रोज आ जिंदगी में आना ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਉੱਠੀ। वो ज्यादा अच्छा डांसर है, ज्यादा अच्छा, इनको तो डांस आता ही नहीं बिल्कुल बहुत ही माठे डांसर है। उस बेचारे को मार भी दिए, देखो ना। ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਐ ਚੁੱਕ ਮੋਢੇ ਚੁੱਕ, ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁਣ। ਕੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ? ਕੰਮ ਕਰੋ ਭਾਜੀ, 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਜਾ। ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ 60 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਟੱਕਰ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਣਗੇ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨੇ 200 ਦੇ ਕੇ ਕੰਧ 'ਚ ਟੱਕਰ ਮਰਵਾਤੀ। ਇਹਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਐ ਚੁੱਕ। अच्छा जी, संजय लीला बंसाली की फिल्म ब्लैक में अमिताभ ने कोई पैसा नहीं लिया था। सब्जेक्ट ऐसा शानदार था कि he said कि मैं फ्री करूँगा। ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਵਹੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲਵੋ। तो दूसरों की शादियों पर डांस करते फिर रहे हैं आप। ਉਹ ਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ। ਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, हद होगी। ਓਏ ਅੰਬਾਨੀ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੜੀ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। आपने नहीं की, आपको गिफ्ट हुई है। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਘੜੀ ਇਹ ਘੜੀ ਵੇਖੋ ਭਾਜੀ, 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਘੜੀ। ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਚੁੱਕ। ਇਹ ਭਾਜੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਘੜੀ। बंसाली की एक बात मुझे बहुत पसंद है जी, कि ये दूर दराज कहीं सेट लगवा के अपना काम करते हैं, पब्लिक से भागते हैं। ये गुरुदत्त भी इसी तरह किया करते थे, विच इज़ वेरी गुड। पब्लिक इज़ अ ग्रेट डिस्ट्रैक्शन। अच्छा यार, संजय लीला बंसाली के नाम में जो लीला है, आपको पता है कि उसकी क्या वजह है? ये मेरी माँ का नाम है लीला। हाँ जी, लीला इनकी वालदा का नाम है। आपको पता है कि मैं अपनी माँ से बड़ा प्यार करता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਉਹਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਹੀ ਚਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਤਾਇਆ। ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਖੈਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। अच्छा, तुम उसी तरह रहो, उसी तरह बैठो। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਲੋੜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੈਸਾ। वही मैं कह ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 200 ਲੈ ਲਈ, ਤੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕੜ ਕੇ ਰਹਿ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ 200 ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ। ਬਸ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। अच्छा नहीं, ये पाकिस्तानी डायरेक्टर से मैं पूछ रहा हूँ, आपको नहीं दावत आई अंबानी की शादी पे? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਰੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਲਈ ਫੋਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਫੋਨ ਇੱਕ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਘਮਾਈਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਏਗੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਏਗੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬੇਟੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਲਾਏਗਾ, ਫਿਲਮ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਬਣਾ ਸਕਣਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5000 ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਔਰ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਿਕਾਓ ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਡਾ ਪੇਂਡੂ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੁਣ ਵਜੇ ਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਵੱਜ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾਨਿਸਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਉਸ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਹੌੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹੌੜਾ ਬ੍ਰਿਜ। अच्छा, हावड़ा ब्रिज की कास्ट बता दो तो फिर मैं बात करूँ। अनिल कपूर। उस वक्त अनिल कपूर मेरा ख्याल है पैदा भी नहीं हुआ था। ਸ਼ਬੀਰ ਗੰਗੂਆ। What? ਸ਼ਬੀਰ ਗੰਗੂਆ ਤਬਾਨਾਜ਼ ਹੀਰੋਇਨ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਸਾਦਕ ਲਾਸ਼, ਹਨੀਫ ਅਚਾਨਕ, ਚਾਹਤ ਕੰਪਿਊਟਰ। ये कहाँ, कौन सी डब्बी के सलमान खान? ਹੌੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਇੱਧਰ ਇਹ ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਦਰ ਖਾਨ ਰਹਿੰਦਾ। बदर खान हवेली रहता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਦਰ ਖਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। हाँ जी। ਉਹ ਇੰਨੀ ਬੋਰ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਕੇ ਗਿਆ ਦਾਸਤਾਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਔਰ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਦਾਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਕੰਮ ਚੱਦਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। तो दिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि जापान के एक इलाके में रोजाना कम से कम एक मर्तबा हंसना कानून बन चुका है। यामागाता ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ? ਸ਼ੀਕੋ ਮਾਮਾ, ਆਸ਼ੋ ਤੋਲੋ, ਟੋਕੀਓ, अच्छा फोकोहामा है, शिकोहामा नहीं है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਟੈਪ, नागासाकी। ਨਾਕਾਸਾਕੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਗੀ। नहीं तो हंसना क्या किसी के सामने या कहीं रिकॉर्ड करना या रजिस्टर करना? वो कहते हैं कि हंसने से बंदे की सेहत पे बड़ा अच्छा असर होता है, बंदे के मसल्स बड़े स्ट्रेच होते हैं, तो हंसना चाहिए। हंसना इज़ वेरी गुड। उन्होंने कानून साजी कर दी कि हर महीने की 8वीं तारीख को ਕਿਉਂ ਜੀ? आप हंसने के लिए कुछ वक्त मुख्तस करें। ये भी बेहतर है कि आप डेली थोड़ा सा हंस लिया करें। स्माइल, लाफ, लाफ्टर है, स्माइल है। जैसे हमारे यहाँ एक दफा आई नहीं थी एक खातून लाफ्टर करवाने, लाफ्टर थेरेपी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। दैट वाज सो हॉरिबल। उफ, उसको देख के हंसी आई थी, अदरवाइज उसकी किसी बात में कोई ऐसा नहीं था। उसका मकसद भी यही नहीं था कि मेरी जुगतों पे या मेरी बातों पे हंसें, वो सिर्फ देखें मैं आपको हंसाऊंगी, और कमाल था वो। और उन्हें हंसाया। तो सर वहाँ के लोग क्या कम हंसते थे, इस वजह से उन्होंने ये जो कानून लागू किया है? नहीं, कम नहीं हंसते। जापानीज जो हैं वो बड़े ऑर्गेनिक से, नेचुरलिस्ट से लोग हैं, और वो कहते हैं कि फितरत जो है वो खुशी है। फितरत में हंसना, खेलना, रिलैक्स्ड रहना, प्योर सोचना, प्योर उठना, प्योर बैठना, प्योर खाना, प्योर सोना। और सुसाइड को भी एज अ रिचुअल वो ही मनाते हैं। वो समझते हैं कि दिस इज ऑल्सो नेचर। जब ये लॉ पास हो रहा था तो कुछ अपोजिशन के लोगों ने, कम्युनिस्ट पार्टी इंक्लूडेड, उन्होंने एतराज़ भी किया कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं ये उनके खिलाफ है, इसलिए उसमें कोई सज़ा नहीं रखी। सजा कोई नहीं जी, आप कानून शिकनी करें, सजा नहीं है उसमें। लेकिन आई थिंक इट सेंड्स अ वेरी गुड मैसेज। इंडीड इट डज। देखिए, इब्तदाई ममालिक में से एक था जापान, कि जिसने बच्चों को किताबों से बेनियाज किया। एग्जाम्स से भी। एक खास उम्र तक नो किताबें। नंबर 2 एग्जाम्स, एक खास ग्रेड तक नो एग्जाम्स। नंबर 3 क्लास में लाजमी सोने का पीरियड है। आपने सुना? इसका क्या मतलब है कि उन्हें पता था कि रीस्टार्ट करते हैं, कैट नैप, पावर अटेंशन नैप। स्पैन का एक टाइम होता है, एक स्पैन है। तो आप थोड़ी देर के, जैसे कंप्यूटर को आप रीस्टार्ट करते हैं, बेहतरीन हो जाता है। इसी तरह आप इंसानी जिस्म को रिलैक्स करें, थोड़ी देर के लिए सोने की कोशिश करें, और इसका लिटमस टेस्ट है कि आपको एक हल्का सा झटका लगे। राटा अगर टैप। हल्का सा झटका लग गया तो समझें रीस्टार्ट हो गया, और वो अक्सर हो जाता है। ਸਰ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਵੱਜਿਆ, ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। आपने सुना नहीं क्या कहते हैं हमारे बारे में, कि हम दुनिया की वाहिद एटमी कुव्वत हैं जिन्हें डिजिटल दहशत गर्दों से खतरा है। सर ये कवानीन जो बने हैं, चले ये तो हेल्थी कवानीन है ना, लेकिन बाज़ों का जिस तरह आपने पिछले शोज में बताया था कि वो नौमौलूद बच्चे के ऊपर थूकना, दैट इज मौरितानिया, नॉट जापान। नहीं, कहने का मतलब यह है कि मुख्तलिफ इलाकों में कवानीन तो है ना इस किस्म के। हाँ, लेकिन अफादियत होती है ना, इसकी तो ट्रेडिशन है एक, बल्कि तवाहम परस्ती है। वो लुआब दहन लगाकर जैसे जख्म का इलाज करते हैं या बहुत सारे दम शम करते हैं, उसी तरह ये भी उसका एक हिस्सा है कि स्पेट कर देना, उससे ये होता है कि बदरूहें जो है वो भाग जाती होंगी। और उसमें कोई हेपेटाइटिस हो, कोई भी बॉडी सीरम से। जी जी जी। लेकिन वहाँ लॉ नहीं बना, नहीं, वो ट्रेडिशन है, दिस इज कस्टम। जैसे हमारे यहाँ बच्चों को पैदा होने पे वो गुट्टी देते हैं। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦੀ ਗੁੱਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆ ਜਾ ਅੰਤਰੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁੱਟੀ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇਂ, ਫੜਾ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਇੱਥੇ ਆਵਣਾ, ਐਵੇਂ ਜੇਬ ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਚੱਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਕੀ ਜੇਬ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲਿਆ, ਜੇਬ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਨੀ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ? ਓਏ ਗੱਲ सोच समझ के करिया कर, मरे एनिमेटेड चूहा होता। अब जब मैं पैदा हुआ, यकीन करें, मैं सबसे छोटा था, और सारी खुशियां कहते हैं, आज भी बताते हैं लोग, कि जितनी जब कोई पैदा होता है ना बब्बू, तो सबसे छोटा ही होता है। क्या करें डॉक्टर साहब, सुनियारे दी नो होंदी। मैं वो बता रहा था कि बड़ी खुशी मनाई घर वालों ने। मैं सब तो छोटा सी ना, माशाल्लाह 10 भरा भी सी, उन्होंने भी खुशी मनाई। मेरे सर पॉकेट में हमेशा वो जो मेरे ऊपर छोटा कंबल ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਉਹਦਾ ਨਵੇਂ ਕੰਬਲ ਆਏ ਸੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। जी जी। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵੇਟਿਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕੈਂਚੀ,
लोहे के तौर पे कैंची रखते सी, ये दाफे बलैयात होती है। लोहा रखते थे ताकि मुझे नजर आए। मैं बहुत क्यूट सी, बड़ा गोलू पटोलू सा। ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਚੀ ਰੱਖੀ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। नहीं तो फिर तुम बाजा क्यों बजाने लग गए? कैंची पित्तल दी आई। उस तो बाद मेरा हकीका बहुत महंगा होया यार। बब्बू, कौन इंटरेस्टेड है? आप पैदा किन हालात में हुए, फिर आपका हकीका कैसा हुआ? 6 बकरे की थे। ठीक है, बकरे का की कसूर सी? यार जापान ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਸਤਰੀਆਂ, ਜਾਪਾਨੀ ਇਸਤਰੀ। जापान तो टेप आउंदी सी बड़ी आला, बैटरियां होंदियां सी। जापान से गुड़िया भी आती थी, गुड़िया जापानी। तो शीबा जापानीज ब्रांड था? तो शीबा बहुत बड़ा मशहूर ब्रांड हुआ करता था। जनरल, तो शीबा, फिर नेशनल, टोयोटा, होंडा, तो फिर ऑटोमोबाइल्स है ना। यामाहा भी इन्हां दी है। हिटाची, एकीगामी। एकीगामी आपका टेलीविजन सेटअप है पूरा, पीटीवी। एकीगामी कैमरे थे सबसे पहले जो जापान ने तोहफे में दिया था ना बना के आपको। तो जो बड़े कैमरे हैं ना वहाँ पे आज भी पड़े हुए, वो एकीगामी है। ਸਰ ਬਾਜ਼ ਰਸਮਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। हाँ जी, जैसे बच्चों को स्विमिंग पूल में फेंक देते हैं, पैदा होती बहुत छोटे बच्चों को और वो खुद तैरता है। ये प्रूव करने के लिए कि इंसान जो है वो नेचुरल स्विमर होता है, क्योंकि पानी के अंदर रहता है वो। और फिर नॉर्वे में, रशिया में, बेलारूस में, बहुत सारे इन इलाकों में बच्चों को, बहुत छोटे नौमौलूद बच्चों को भी बाहर ठंडे यख बर्फ के ऊपर छोड़ देते हैं और अंदर बैठ के गर्मा गर्म सूप पी रहे होते हैं, कॉफी पी रहे होते हैं, हॉट चॉकलेट पीते हैं कि बच्चे बाहर रहें। ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕਰੀ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਕਰੀ। नहीं, इससे बहुत सी बीमारियां जाती रहती। बर्फ के ऊपर जो है वो किसी वजह से, ये नेचुरल ट्रीटमेंट है। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਟੇ ਹੋ? हाँ जी। ठीक है। वो मच्छी खादी होनी जेडी पीछे नु दौड़दी। वो तो सब खाते हैं यार, ट्राउट किसने नहीं खाई हुई? सर पाकिस्तान च बेस्ट केड़ी है? पाकिस्तान में 2-3 बड़ी मशहूर हैं। एक तो नंबर 1 मैं समझता हूँ कुन्हार। कुन्हार की ट्राउट जैसी कहीं और नहीं है। और फिर स्वाद की भी बहुत अच्छी है, दरिया अस्तौर की भी अच्छी है, गिजर की अच्छी है, लेकिन कुन्हार जैसी कहीं नहीं। वाह वाह। और अगर आपने इंतहाई हसीन मछलियां देखनी हो ना, आए भाई जितने रंग दुनिया में हो सकते हैं, आप समझें कि हर रंग की मछली जो आपके व्यू में आ जाए। शैलो वाटर, शैलो वाटर नहीं, बड़ा डीप वाटर भी, बहुत डीप वाटर, इसलिए कि सूरज की शुआएं बहुत नीचे तक जाती हैं। क्लियर वाटर, और वो उनके शिमरिंग कलर्स जो है ना, जैसे फ्लोरेसेंट नहीं होते कलर्स, वाह वाह, यूं रेडिएट कर रही होती हैं, वो इस तरह रिफ्रैक्शन हो रही होती है। वो एक हसीन मंजर है। इसके लिए अगर अल्लाह आपको मौका दे कभी, देखें हम साथ साथ टूरिज्म का तस्करा भी करते रहते हैं ना, लोगों को तहरीक हो कि बजाय इसके कि खा खा के अपनी सेविंग ज़ाया कर दें, तो थोड़ा सा फिरें टुरें, दुनिया देखें, आपके इल्म में इतना इजाफा होगा, नए नए लोगों से मिलेंगे। जगह केड़ी सर? शर्मुल शेख, about to say that, इजिप्ट। इजिप्ट। ਉਹੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਮਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਸ਼ਰਮੁਲ शेख। तुमने कहाँ से सुन लिया? ये तो कॉलम था। तुम कॉलम पढ़ते हो? हाँ जी पढ़ता हूँ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਮੈਂਡਕ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।